The next unit which we are going to start today, that is organic compounds containing nitrogen. This is unit 13, right? Part A इसमें है amines. Amines are those organic compounds which have the functional group NH2, which have the functional group NH2. Okay? अब amines जो है they have extensive uses, जैसे for example there is a drug by the name of quinine that is used to cure malaria, तो इसलिए हम इसको एंटी मलेरियल ड्रग भी बुलाते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी मलेरियल ड्रग. Then there is adrenaline and ephedrine. Which is used for increasing blood pressure. ठीक है. फिर उसके बाद नोवासिन. नोवासिन जो है ये डेंटिस्ट्री में यूज होता है एज एन एनेस्थेटिक. in dentistry. इन सब के पास जितने भी कंपाउंड्स हमने करे हैं, they all have amine as one of the functional group. ठीक है. फिर एक जो बड़ा कॉमन सा जिसके बारे में आपको पता भी है, बेनाड्रिल. It is used as a cough syrup. ठीक है. So all these compounds they contain amines. When we go on to the classification of amines, we broadly classify amines into primary, और 1 degree amines जिसके साथ नाइट्रोजन के साथ NH2 अटैच्ड है, and then there is only one alkyl group attached. ठीक है. This is known as alkyl amine. Then 2 degree or secondary amine, when one of the hydrogen is substituted by another alkyl group, this is known as dialkyl amine, right? और फिर उसके बाद 3 degree R3N, which is known as trialkyl amine. So broadly हम इसको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, but depending upon the alkyl, the group which is present over here, amines are further classified into first, which is known as aliphatic amines. Aliphatic amines जो है they will have only the alkyl groups, right? So ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पे किए हैं, they all are aliphatic amines. जैसे for example we can have CH3 NH2 methylamine, C2H5 NH2 ethylamine and so on. Okay. Second जो है they are aromatic amines. Aromatic amines में एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहती है, तो उसमें फर्स्ट हम लोग करते हैं जिसमें ओनली बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज
arylamines. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव aniline, right? And the second one, that is alkyl arylamines. यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप होगा वो साइड चेन में प्रेजेंट होगा, it will not be directly attached to the benzene ring. जैसे for example we have CH2 CH2 NH2. This is alkyl arylamine. अब यहाँ पे इसको हम लोग नेम कैसे करेंगे? 2-phenyl इथेनामाइन या 2-phenyl इथाइलामीन. ओके, अभी नॉमेनक्लेचर आगे करेंगे तो देन इट विल बिकम मोर क्लियर. दिस इज एनालिन, LINA, राइट? तो इस तरह से हम मेजरली क्लासिफाई करते हैं अमीन्स को. Now when we go on to the nomenclature of amines, let's see क्या है nomenclature. कॉमन सिस्टम में जब हम नेमिंग करते हैं तो कॉमन सिस्टम में हम पहले एल्काइल ग्रुप को नेम करेंगे और फिर उसके बाद अमीन लिखेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2 NH2. This is going to be known as ethyl amine. ठीक है, और अगर हमारे पास सेकेंडरी है CH3 CH2 NH CH2 CH3. This is known as diethylamine. Diethylamine. ठीक है, ये वाले जो अमीन्स जिसके पास सेम काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल अमीन्स. पर अगर ये एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हो, जैसे वी हैव CH3 CH2 NH CH3. ठीक है, अब दिस इज नोन एज अ मिक्स्ड अमीन और इसको हम अल्फाबेटिकली नेम करेंगे. एक जगह इथाइल ग्रुप है, दूसरी जगह मिथाइल ग्रुप है, तो इसे हम बुलाएंगे इथाइल मिथाइल अमीन. ठीक है, और इसको हम क्या बुलाते हैं? बिकॉज एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हैं, दिस इज नोन एज मिक्स्ड अमीन्स. But when we're doing the IUPAC nomenclature, according to IUPAC nomenclature, this CH3 CH2 NH2, this is known as ethyl root word. ठीक है, an आएगा primary suffix, so this is known as इथेनामीन. इथेनामाइन. ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगर सेकेंडरी है तो देन दिस विल बी नेम्ड एज N इथाइल इथेनामाइन. राइट? अगर टर्शरी है, this is tertiary, then this will be NN dimethyl methenamine. NN dimethyl methenamine. Okay, this is how we are going to do the naming of these compounds. Now अगर हमारे पास एक cyclic compound है, दिस इज द कंपाउंड, तो इसको हम कैसे नेम करेंगे? साइक्लो हेक्सेनामाइन. देयर आर 6 कार्बन आइटम्स इन द रिंग और साइक्लिक कंपाउंड है, सो साइक्लो हेक्सेनामाइन. ठीक है,
अब इसके साथ मिथाइल ग्रुप्स भी अटैच कर देते हैं हम, तो क्या आएगा यहाँ पे NN डाइमिथाइल नहीं सॉरी आई एम सॉरी NN डाइमिथाइल क्या आएगा इसका नेमिंग। यहां से हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 4 डाइमिथाइल और उसके बाद इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे साइक्लोहेक्सेनामाइन ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द नेमिंग अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्लियर हो गया। अब अगर थोड़ी सी हम कॉम्प्लेक्स चेन लें, हमारे पास है CH3 NH CH2 CH2 C CH3। इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, इस चेन को सेपरेटली और इस चेन को सेपरेटली, तो इसको हम लोग N मिथाइल ले लेंगे, छोटी वाली को N मिथाइल and then you do the numbering of the chain. Number 1 will be given to this carbon atom which is attached to nitrogen, 2 3 4, तो ये आ जाएगा N मिथाइल 3 नाइट्रो ब्यूटेनामाइन, 3 नाइट्रो ठीक है। Is it clear? So this is how we are going to do the nomenclature. Then let's go on to isomerism in amines. Okay. So next हमारा जो topic है that is isomerism in amines. Okay. जब isomerism हम amines में करते हैं तो first kind of isomerism which it will undergo that is known as chain isomerism. जहां पे chain to which the amine group attached is going to be different, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2 NH2, this will be known as butylamine या butylamine, ठीक है। इसका जो आइसोमर होगा that is going to be, इसका क्या नेम होएगा 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन. So it is the first kind which it is going to, the first kind of isomerism which it is going to show. The second one, that is metamerism. Metamerism means the kind of alkyl groups on both the kinds of nitrogen is going to be different. जैसे हमारे पास आ गया CH3 CH2 NH CH2 NH CH3. So this is going to be what? IUPAC name. N-ethyl, N-ethyl इथेनॉल, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से लिखते तो इसका क्या नाम होगा? N-methyl N-methyl propanamide, N-methyl propanamide, ठीक है। Is it clear? So this is metamerism. The third kind it is going to show is functional isomerism. Functional isomerism का
का क्या मतलब होता है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स अलग अलग शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3, CH2, 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 NH2. What is going to be the name? Butanamine. ठीक है, सो ब्यूटेनामाइन आ गया ये। अब अगर इसका फंक्शनल ग्रुप हमको शो करना है तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा CH3, CH2, CH2, NH, CH3। इसका क्या नाम होगा? N-methyl propanamine. So this is 1 degree, this is 2 degree. Okay. अब इसी को 3 डिग्री में भी हम शो कर सकते हैं। CH3, CH, N, CH3 and CH3. This is going to be NN dimethyl ethanamine. Okay. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका चेक करते हैं। इन दिस केस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C1234। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 6 8 8 and 3 is 11। ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C4 1 2 3 4, H कितना है? 3 4 5 6 7 8 8 and 3 is 11 N, राइट। और अगर आप यहां पे देखते हो तो यहां पे भी C4 3 3 9 and 1 is 10, यहां पे 2 आएगा, 11 आ गया N। So we can see that in all the 3 cases molecular formula जो है that is same but the functional group that is going to be different. Okay, so it shows functional isomerism also. Clear हो गया? So this is the 3 kind of isomerism it is going to show. Then let's go on to the methods of preparation of amines. The first method of preparation is from alkyl halides. जो एल्काइल हैलाइड से हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट। जब हमारे पास प्राइमरी अमीन बन जाता है RNH2, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री अमीन। फिर सेकेंड स्टेप में हम RNH2 को फिर से रिएक्ट कर सकते हैं with RX to give us a secondary amine R2NH। फिर R2NH को जब हम फिर से RX के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें दे देगा R3N टर्शरी अमीन, ठीक है। और R3N को फर्दर अगर हम RX के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्ट आ जाता है। दिस इज नोन एज अ क्वाटरनरी सॉल्ट, ठीक है। सो एज आई जस्ट सेड कि इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे जो बेटर लीविंग ग्रुप होगा, जितना इजीली इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकेंगे उतनी इजीली सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि RI जो है वो मोस्ट रिएक्टिव
बिकॉज आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी स्मॉल, सॉरी लार्ज, एंड देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल। ठीक है, सो Ri सबसे इजीली ये वाली रिएक्शंस अंडरगो करता है, फिर उसके बाद RBr और फिर उसके बाद RCl। Okay, let's take an example. We are taking CH3 CH2I plus ammonia। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा that is going to be ethylamine। फिर ethylamine को हम फिर से एक और मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी नाउ डाइइथाइलामीन। In all the cases, HI will be liberated, right? फिर उसके बाद हम डाइइथाइलामीन को फिर से रिएक्ट कर देते हैं विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2I and this is going to give us tertiary amine, triethylamine। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे हम लोग एल्काइल अमीन्स जो है वो बना सकते हैं। ड्रॉबैक्स जब हम इस रिएक्शन के देखते हैं तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ अमीन्स आता है। जब रिएक्शन होएगी तो वी विल गेट अ लिटिल अमाउंट ऑफ दिस, लिटिल अमाउंट ऑफ दिस एंड लिटिल अमाउंट ऑफ दिस आल्सो। इस मिक्सचर में से हर एक अमीन को सेपरेट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक। अब इसमें अगर हमको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो एक ही प्रोडक्ट के लिए हमारे पास सिर्फ वी कैन से वी हैव टू कंडीशंस जिससे हमारे पास एक टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे क्या कंडीशंस है वो, conditions to get only one kind of product, mixture ना मिले हमें, एक ही kind of product मिले, तो first जो condition है that is we use large excess of ammonia। जब हम reaction कर रहे हैं तो हम excess of ammonia इसमें use करते हैं। तो जब excess of ammonia हम use करेंगे तो only primary amine will be formed, only 1 degree amine is formed। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज यूजिंग लार्ज एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड। यूजिंग लार्ज एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड, राइट। तो इन दिस केस क्वाaternary salt is going to be the main product। क्लियर हो गया? तो अगर हम अमोनिया एक्सेस करते हैं तो 1 डिग्री अमीन हमारे पास बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और अगर हम एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो क्वाaternary सॉल्ट जो है वो हमारे पास, ठीक है, ज्यादा बनेगा। अब अनदर ड्रॉबैक ओवर हियर इज कि ये वाली रिएक्शन से हम अराइल अमीन्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर अराइल अमीन्स। क्यों? क्योंकि अराइल अमीन्स जो है अकॉर्डिंग टू, जब हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आगे देखेंगे तो अराइल अमीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ओके, दैट इज व्हाई अराइल अमीन्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। क्लियर हो गया? सो दो इसके ड्रॉबैक्स हैं,
नंबर 1 मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं और उनमें से हमको हर एक प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। और सेकेंड, अराइल अमीन्स हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। Okay, so this is the first method. The second method which we are going to do is reduction of nitro compounds. Second method of preparation. Reduction of nitro compounds. Nitro compounds को हम reduce कर सकते हैं by using different reducing agents. जैसे हम use कर सकते हैं रेडी निकल, हम यूज कर सकते हैं टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हम यूज कर सकते हैं Fe in presence of HCl, and also we can use lithium aluminium hydride. जो रेडी निकल हम इस पे यूज करेंगे, इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम निकल एल्यूमिनियम, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। नेसेंट हाइड्रोजन इसमें प्रोड्यूस होता है। वी कैन यूज एनी अमंग्स द फॉलोइंग रेडी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, Sn in presence of HCl, Fe in presence of HCl. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए हमें नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होती। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो इन दैट केस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर रिडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग ओवर हियर बिकॉज आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी, एनी, ठीक है, एनी। और इसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज प्लैटिनम, इसको मत यूज करो यहाँ पे, और पैलेडियम, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। Suppose we are using Fe in presence of HCl, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे NO2 डालो, we will get CH3 CH2 NH2 plus water, ठीक है। Now Fe और HCl is a good method to use because इसमें हम देखते हैं कि HCl वापस यील्ड हो जाती है, कि हम लोग Fe और HCl की जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है FeCl2 plus H2, ठीक है। अब अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हम करें FeCl2 plus वाटर, तो ये हमें HCl वापस दे देता है और इस HCl को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो Fe है इसे समटाइम्स आयरन स्क्रैप इन प्रेजेंस ऑफ HCl भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, ठीक है, कि हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रोइथेन टू अमीनोइथेन यूजिंग iron scrap and HCl. So iron scrap and HCl is this only. ठीक है? Is it clear? Okay. उसी तरह से हम लोग नाइट्रोबेंजीन से एनिलिन भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। The reaction takes place in presence of dry ether. ठीक है। So this is the second method of preparation, reduction of nitro compounds. Third method of preparation is reduction of cyanides and isocyanides. Cyanide से प्राइमरी अमीन्स बनते हैं, whereas isocyanide से secondary amines बनते हैं. So when we doing this, तो हम लोग क्या करेंगे, strong reducing agent जैसे lithium aluminium hydride, this reaction
is also reduced with nascent hydrogen, तो हमारे पास आ जाएगा to give us CH3 CH2NH2। ठीक है, साइनोबेंजीन अगर हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहां पे हमारे पास व्हाट इज गोइंग टू बी द IUPAC नेम ऑफ दिस? ऐसे तो इसको बेंजाइलअमीन बुलाते हैं, बट IUPAC नेम क्या होगा इसका? 1-phenyl मिथेनामाइन, 1-phenyl मिथेनामाइन। ठीक है, अब अगर हम आइसोसाइनाइड ले लें, आइसोसाइनाइड का मतलब हुआ ये, दिस इज आइसोसाइनाइड। इसकी जब हम रिडक्शन करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आता है, प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वी आर गोइंग टू गेट CH3 NHCH3। सो आइसोसाइनाइड हमें सेकेंडरी अमीन्स दे रहे हैं, वेयर एज साइनाइड जो है वो हमें प्राइमरी अमीन्स दे रहे हैं। ओके, अब ये वाली जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एन अपग्रेडेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्शन दी हुई है कि मिथाइल ब्रोमाइड से इथेनामाइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? मिथाइल ब्रोमाइड हो गया CH3Br reacted with KCl to give CH3Cl, फिर इसकी रिडक्शन कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, एंड वी विल गेट CH3CH2 NH2। स्टेप अप रिएक्शन भी इसको बुलाते हैं, अपग्रेडेशन रिएक्शन भी बुलाते हैं, बिकॉज रिएक्टेंट्स में एक ही कार्बन एटम है, whereas प्रोडक्ट्स में जब हम जा रहे हैं देयर आर 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ स्टेप अप रिएक्शन। क्लियर हो गया? देन वी कम टू रिडक्शन ऑफ amines। The fourth method of preparation amines। Amines is CONH2 group। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ईथर, वी हैव RCONH2 in presence of lithium aluminium hydride, ईथर की प्रेजेंस पे होगा, तो यहाँ पे वापस आ जाएगा RCH2NH2। यहाँ पे द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों में सेम रहते हैं, देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है aromatic amide, this is known as what? Benzamide। ईथर, तो ये हमें क्या दे देगा? फिनाइल मिथेनामाइन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगर यही रिएक्शन हम लोग N मिथाइल एसिटामाइड के साथ करें, N मिथाइल एसिटामाइड क्या हुआ? CH3CO NHCH3, N मिथाइल इथेनामाइड भी लिख सकते हैं हम, पर क्योंकि CH3CO एसिटो ग्रुप है तो कॉमन नेम इसका क्या आ जाएगा? एसिटामाइड। जब इसकी रिडक्शन की जाती है
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो ये हमें सेकेंडरी अमीन दे देता है। वी विल गेट CH3 CH2 NHCH3। ठीक है, is it clear? So we are going to get a secondary amine over here. Then the fifth reaction is very important from your examination point of view, Hofmann bromamide degradation method. Hofmann bromamide degradation method. Degradation method का मतलब ये होगा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रोडक्ट में कम होंगे एज कंपेयर टू दैट इन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग रिएक्शन करते हैं अमाइड की with bromine in presence of KOH। तो हमारे पास एक अमीन बन गया RNH2, पोटेशियम कार्बोनेट, एक कार्बन जो यहां से था डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टाइप हो रही है इधर, ठीक है, प्लस वाटर। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, an example which we can take is CH3CO NH2 plus Br2 plus four KOH to give us CH3 NH2 plus 2 KBr plus K2CO3 plus 2H2। So you can see over here कि यहाँ पे रिएक्टेंट के पास दो कार्बन एटम्स हैं, पर जो हमारे पास अमीन बन रहा है उसके पास एक ही कार्बन एटम है, therefore it is known as a degradation reaction, right? The last reaction which we are going to do, that is Gabriel Thalamide synthesis, the sixth one। ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, Gabriel Thalamide synthesis। ये वाली जो रिएक्शन है इसका एक ड्रॉबैक है कि इससे हम सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही बना सकते हैं, we can only make primary amines, सेकेंडरी एरोमेटिक टर्शरी कुछ भी इससे नहीं बन सकता। The reaction starts with thalamide, as the name is saying. Thalamide is, this is thalamide। इसको हम रिएक्ट करते हैं with alcoholic KOH when the hydrogen over here is substituted with potassium। So we have potassium thalamide, potassium thalamide, ठीक है, negative charges on nitrogen and positive charges on potassium। फिर ये जो potassium thalamide बन रहा है इसको हम रिएक्ट करते हैं with an alkyl halide। So हम C2H5 Br के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, when we get ethyl thalamide, this is ethyl thalamide, ठीक है, और फाइनली हम इसे रिएक्ट करेंगे with water, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं हम इसकी, when we will get phthalic acid plus our major product which is C2H5 NH2। ठीक है, so इससे as I just said कि we can only prepare primary amine, this is what we are going to do। so ये दोनों reactions important है, अगर direct reactions आ गई और अगर conversions आ जाती है
तो केसीएन वाली रिएक्शन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप रिडक्शन ऑफ साइनो कंपाउंड्स कर रहे हो। क्लियर?